Okay. Okay. So welcome all of you. Welcome all of you. There's a problem with the FB Live. My battery is going down. ठीक है? So welcome all of you to this class, to this session of poetry, elementary school. ठीक है? So today the poem which we are going to do is the second poem of our textbook, which is an elementary school classroom in a slum. Okay, so now what is happening in this poem? First of all, as I told you, poetry में बहुत जरूरी है कि आपको पोएट का नाम पता हो. ये हमें 1 नंबर दिलवाएगा और ये एक नंबर बहुत जरूरी है हमारे लिए. It can make or break your plans or your career, future, everything. Okay, so this elementary school classroom is written by Stephen Spender. Stephen Spender और भी जगह मेंशन होगा, इसको आप देख सकते हैं. जब मेंशन होगा तब आपको बता देंगे जहां पे ये मेंशन होगा. तो स्टीफन स्पेंडर जो है, अबाउट द पोएट मैं थोड़ा सा एक बार आपके सामने पढ़ देता हूँ. अबाउट द पोएट में कुछ लाइंस हैं विच आर इम्पोर्टेंट, विच गिव यू एन आइडिया भाई व्हाट इज स्टीफन स्पेंडर राइटिंग अबाउट, किस बारे में लिख रहा है वो. यू कैन सी इट्स रिटन, Stephen Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Who is a pacifist? Pacifist is a person who is against war. Fine. Pacifist is a person who is against war, जो कि जंग के खिलाफ है, चाहे वो जंग कोई भी करे. Even if his nation fights a war, he will oppose it. Correct? Voice में प्रॉब्लम है अभी भी. किसको, बाकी लोगों को आ रही है सही आवाज? बता दें एक बार. ओके, सो ही इज अ पर्सन हु इज अ पैसिफिस्ट. ही इज अ पैसिफिस्ट पोएट. इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, he has concentrated on the themes of social injustice and class inequalities. Two things are there. You can underline these two things: social injustice and class inequalities. Now you see in society there are number of classes, higher class, lower class. कहीं पे जो है डिफरेंशिएशन वो इकोनॉमिक है. इंडिया में जैसे कास्ट सिस्टम भी है तो इनजस्टिस भी हो रहा है. द हायर क्लासेस आर एक्सप्लॉइटिंग द लोअर क्लासेस. द लोअर क्लासेस आर अंडर प्रिविलेज, दे डोंट गेट देयर राइट्स. इनइक्वालिटीज हैं. Okay, class inequalities. You see there is a difference of income among the classes, between the classes. So all this is happening, right? So he is writing about the social issues. Stephen Spender writes about the social issues. सामाजिक चीजों के बारे में लिखता है वो. Now it says like title. You go to the title, you see an elementary school classroom in a slum. Now classroom. All of you have seen a classroom. Elementary. What is elementary? Elementary is basic. Elementary is basic. Primary. So elementary you can replace it with primary also. A primary school classroom in a slum. Now slum all of you know. We just had the slum description in Law Spring. Do you remember having the slum description in the Law Spring? We had it. In Law Spring we had the description of a slum. In Simapuri, if you have read the lesson or you have watched the video, then you will get a clear idea what is a slum like. Okay. Now we are studying in RPV civil line. So our school is not in a slum. Slum is exactly the opposite जो हमारा स्कूल है, समझ लो. Our school is an elite institution. Elite, you know the word elite, ELIT. Elite means very special, privileged, विशेष अधिकार है उसको. ठीक है, आम नहीं है, वो खास है. Right? So it's an elite institution. If you go to some other places, to go some slum area, you will find there is a difference between the schools. Like our school is so clean. We have in many rooms you will find even you will find like projectors are there, white. There is a screen there. There are green boards there. So all these things are happening there. You go to a slum school, you won't find these. Facilities will be very less. Okay. परेशानियां बहुत होंगी वहाँ स्टूडेंट्स को. आप बैठते हैं पंखे के नीचे, चारों पंखे चल रहे होते हैं आपके. ओके, आपकी चारों लाइट भी चल रही होती है. नहीं आती आप फौरन कंप्लेंट कर देते हैं जाके. और वहां पर क्या है, वहां पर बच्चे भी ज्यादा हैं. वहां पर क्राउडेड क्लासरूम्स, ब्रोकन डेस्क्स, मैल फंक्शनिंग लाइट्स, फैंस नॉट वर्किंग, ब्रोकन विंडोज, ब्रोकन विंडो पेन्स. ओके, इन विंटर्स यू सिट क्लोज टू द विंडो, यू सी देयर इज अ शीशा लगा है, विंडो पेन है. वहां पे आप देखेंगे विंडो पेन नहीं है, किसी ने लकड़ी ठोक रखी है, किसी ने गत्ता लगा रखा है. अंडरस्टैंड?
So that is an elementary school classroom in a slum. So slum means there is lack of facilities over there, lack of infrastructure over there. And Sanjana Bhandari wants to say something. She has raised her hand. Sanjana, are you not getting my voice clear? What is the problem? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही तो आप YouTube पे आ जाएं, सॉरी Facebook पे लाइव आ जाएं. चलो लेट अस स्टार्ट. तो यहाँ पर आपके सामने एक डिस्क्रिप्शन है एक ऐसी क्लासरूम का जो प्राइमरी की क्लासरूम है और वो कहाँ पर है? वो है उसमें एक स्लम में, राइट? नाउ द फर्स्ट लाइन, far far from gusty waves these children's faces. So here the poet is describing a classroom. Now you enter the classroom, you see students are sitting, and the poem begins with two words, far far. Far, you know, which is far away, far far from gusty waves these children's faces. First line, understand this line. Who are these children? These children are the children who are sitting in the classroom. Clear? जो बच्चे क्लास में बैठे हैं वो these children हैं. आप बैठे हैं क्लास में, आप हैं. These children's faces, किसके चेहरे की बात हो रही है? Whose faces are we talking about? We are talking about the faces of the children who are sitting in the classroom, which is where? In a slum, right? तो एक स्लम में, स्लम एरिया में, झुग्गी झोपड़ी में कुछ बच्चे बैठे हैं क्लास में, स्कूल में. तो उनके चेहरों को डिस्क्राइब किया गया. कैसे चेहरे हैं उनके? What kind of faces? Now you look at the faces of children. You look at your faces in the class. आप देखें अपने चेहरे पे. There is so much of energy when you come to school. Very energetic, very enthusiastic. There is a glow on your face. Happy expressions on the face. You know, there is excitement on your face. There is, it's so full of energy. Live faces होते हैं क्लास में. Okay, you look at someone in the class, you will see, okay, he has a certain expression on his face. Energetic expression. Somebody is so curious to do something. Somebody is curious to ask a question. Other person is very enthusiastic to create mischief in the class. Okay, so such things are happening in the class. But यहाँ पे contrast है. ये एक नॉर्मल क्लास नहीं है. यहाँ पे देखो क्या है कि इन बच्चों के जो चेहरे हैं ना वो बहुत दूर हैं, इसीलिए फार को 2 बार रिपीट किया है. फार 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 फार. व्हाट डज दिस फार फार मीन? कि ये बहुत दूर हैं. कौन? इन बच्चों के चेहरे उस एनर्जी से, एंथुजियाज्म से, क्यूरियोसिटी से, ठीक है, जो कि बच्चों के चेहरे पे होता है, बच्चों के फेसेस पे होता है, उनसे ये कोसों दूर हैं. जैसे हम हिंदी में एक्सप्रेशन लगाते हैं ना, कोसों दूर. जैसे हम कहते हैं नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी, तो क्या नाप के आए थे कि कोसों दूर है? नहीं ना. तो ये वही है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स. तो वेव्स क्या होती हैं? आप वेव्स देखो, लहरें. वेव्स में एनर्जी होती है ना, they have lot of energy. The energy of the waves can be used to produce they can be used to produce power also. तो फर्स्ट लाइन क्या कह रही है कि ये जो बच्चे हैं जो क्लास में बैठे हैं एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में, इनके बच्चे कैसे हैं? दे आर लैकिंग तो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, उनके अंदर कमी है. लैकिंग व्हाट? They are lacking energy, they are lacking enthusiasm, they are lacking curiosity, they are lacking excitement, they are lacking energy, they are lacking a glow. Are you getting me? आज तो समझ आ रहा होगा ना. आज मैं एकदम बाइलिंगुअल होके करा रहा हूँ. और फर्स्ट लाइन I have explained to you. Far far from gusty waves. Sanjana Bhandari, please say something. Wants to say something. Please write in the chat. Sanjana Bhandari, please write. You have raised your hand for a long time. पता नहीं बच्ची को क्या परेशानी है, बताओ. Do it quick, okay? Because you are interrupting the class. Okay, first sentence is clear. First sentence is clear. देखो, जिसको नहीं सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, you can go to the YouTube link. वहां जाके देख लेना. मुझे पढ़ाने दो प्लीज. Don't raise your hands like that. I can clear your doubts personally also. Okay, coming back to the second line. Like rootless weeds. अब like हमने किया था figure of speech, if you remember. फिगर ऑफ स्पीच जो मैंने कहा था, हिंदी में कहते हैं उसको अलंकार. शायद अलंकार ही होता है. सम स्टूडेंट्स आर वेटिंग इन द रूम. देखो, लेट आएंगे तो वेट ही करेंगे. बताओ यार, मेरी क्या गलती है? होल्ड. ये देखो, एक ये भी दिक्कत है, लेट आते हैं फिर इनको ज्वाइन कराओ. चलो. सो लाइक रूटलेस वीड्स देयर हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर. नाउ लाइक रूटलेस वीड्स. सो वी हैव अ सिमिली. सेकेंड लाइन. Okay, second line we see it begins with like. Like, और I have told you, जहां पे like और
एज आएगा, जहां पर लाइक और एज आएगा वहां पे सिमिली आएगी आपकी, फिगर ऑफ स्पीच सिमिली। क्लियर? ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा आपको, फिगर ऑफ स्पीच पूछ लेंगे भी बताओ सेकंड लाइन में विच इज द फिगर ऑफ स्पीच, विच इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेकंड लाइन, और 4 लाइन दे देंगे सेकंड लाइन में फिगर ऑफ स्पीच बताओ, देन यू कैन से ओ द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली। पहचानेंगे कैसे? जहां पे लाइक और एज लग गया फौरन आप बता दीजिए सिमिली है वो, जहां पे कंपैरिजन किया गया है अनइक्वल थिंग्स का, लाइक आई सेड ही रन्स लाइक ए हॉर्स, ही रन्स लाइक अ हॉर्स, तो ये लाइक अ हॉर्स किसको, हम उसको, या जो भी अजय रन्स लाइक अ हॉर्स, सपोज आई से सम अजय, ओके ही रन्स लाइक अ हॉर्स, ओके सो thank you Sanjana, I have got your message, okay he runs like a horse means I am comparing him to the horse। कौन सी क्वालिटी? उसकी स्पीड की क्वालिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया वो घोड़ा है, ये नहीं कह रहा मैं कि वो घोड़ा है, अब वो खाना मांगे तो घास ही दे दोगे, ओके नॉट दैट। एक क्वालिटी है उसकी डिस्क्राइब की है कि भाई वो हॉर्स की तरह दौड़ता है, उसकी स्पीड के बारे में आती है, तेज दौड़ता है, तो ये सिमिली होती है। इज इट क्लियर? द सिमिली पार्ट। नाउ ऐसे यहाँ पे आ गया दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक रूटलेस वीड्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड वीड्स। ये वीड्स क्या होते हैं? वीड्स सब जानते हैं, अनवांटेड प्लांट्स आर वीड्स, ओके अनवांटेड प्लांट्स आर वीड्स। रूटलेस वीड्स, एक तो वीड है तो अनवांटेड है, ऊपर से उसको तुमने क्या किया, रूटलेस कैसे होगा जब उसको आपने उखाड़ के डाल दिया, ठीक है, या फिर उसके वो ऐसी जैसे बेल होती है, रूट तो होते नहीं, वो वीड होती है, यूजलेस होती है, लाइक रूटलेस वीड्स। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लाइन है, ठीक है, इसे मैं समझाता हूं आपको। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, द हेयर ओके टॉर्न राउंड देयर पैलर। नाउ व्हाट इज दिस वर्ड? PALLOR। पैलर क्या होता है? पैलर बना वर्ड पेल से, PALE पेल। पेल मीन्स लाइफलेस, नॉट हैविंग द कलर, ठीक है, जिसका कलर खत्म हो गया, वो पीला पड़ गया, जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में पीला पड़ गया चेहरा। हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, उनके पीले पड़े हुए चेहरों पे उनके बाल कैसे थे? बाल कैसे थे? एक तो आप कंगा वंगा करके ग्रूम्ड होके बैठे हैं एकदम, एक है सुबह सुबह उठे तो बिखरे हुए बाल हैं, अनकेम्प्ड हेयर। टॉर्न अराउंड मीन्स स्कैटर्ड, द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलर। अब पैलर किसको रेफर कर रहा है? पेल फेस। तो अगर हम हिंदी इसकी बता दें तो ये हो जाएगा भी उनके पीले पड़े हुए चेहरों पे उनके बाल बिखरे हुए थे, हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, ठीक है। लाइक रूटलेस वीड्स, तो ये लाइक जो है फेसेस के लिए नहीं आया कभी तुम कहो जी फेस रूटलेस वीड्स की तरह, नो, इट इज द पैलर, इट इज द हेयर विच आर लाइक द रूटलेस वीड्स। गेटिंग? थोड़ा कंफ्यूजिंग सी लाइन है, इसीलिए हम इसको पहले ले आएंगे। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर लाइक रूटलेस वीड्स, तो उनके जो बाल हैं उनके पीले पड़े हुए थके हुए चेहरों पे ऐसे हैं जैसे कि रूटलेस वीड्स। आई होप आई एम क्लियर, आई होप आई एम क्लियर विद दीज 2 लाइन्स। एनीबडी हैज अ प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, ओके। तो ये आपके सामने एक जनरल बात बताइए कि एक क्लासरूम में ऐसा चल रहा है, दिस इज द सीन इन द क्लासरूम। अब आगे आ जाओ, आज शायद एक ही स्टैंजा हो पाएगा, बस समझ में आना चाहिए, एक को हमें कोई जल्दी नहीं है। लाइक रूटलेस वीड्स हो गया, अब आ जाओ। अब इस स्टैंजा में पोएट ने ना 3 टाइप के बच्चों का यहाँ पे वो लाया है, रिप्रेजेंटेटिव, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरी क्लास का 3 टाइप के बच्चे। पहला एग्जाम्पल उसने लिया द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। सबको दिख रहा है ना ये द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, तो टॉल सब समझते हैं, टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। अब वेट डाउन हेड कैसे होगा? वेट डाउन हेड, किसी चीज पे आप वजन रख दो वो झुक जाएगी ना, वेट से डाउन हो गई। अरे भाई आपको हमने दे दिया 50 किलो का बोझ आपके, तो आप झुक जाओगे उसको उठा के, बस वेट डाउन हेड। तो यहाँ पे फिजिकल बर्डन नहीं है उसके ऊपर कोई कि उसने कोई अपने सर पे 30 किलो का कुछ कट्टा रखा है या बैग रखा है उसने, नो नॉट दैट। द टॉल गर्ल विद द वेट डाउन हेड, वो जो गर्ल है टॉल है और उसका सर झुका हुआ है, वेट डाउन है। क्यों वेट डाउन है भाई? व्हाट इज द रीजन? हियर वेट डाउन डज नॉट मीन दैट इट इज, वेट डाउन डजंट मीन कि भाई उसके ऊपर कोई बर्डन रखा है, फिजिकल बर्डन, नो, इट मीन्स स्ट्रेस, इट मीन्स सम काइंड ऑफ टेंशन, कोई एंजाइटी, कोई उसके दिमाग पे मानसिक दबाव है, कोई प्रेशर है उसके ऊपर। किस वजह से? बहुत सारी वजह हो सकती है, देयर कैन बी मैनी कॉजेज, मैनी रीजंस। इट मे बी सम डोमेस्टिक ट्रबल, इट मे बी पॉवर्टी, it may be strife, it may be some conflict at home, it may be some conflict in her locality, something she may be thinking about her future, okay, she may be depressed, कुछ भी। because आप ये सोचे ना, कनेक्ट करें आप इस चीज को कि भाई ये बच्चे कौन सी, they are coming from which class of society,
दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम दैट क्लास ऑफ सोसाइटी जो बहुत एफ्लुएंट है, जिनके पास बहुत कुछ है। ये वहां से आया है जिनके पास बहुत कम है, समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग, तभी तो स्लम में रह रहे हैं, तभी तो वो एलिमेंट्री स्कूल में उस स्कूल में जा रहे हैं जो कि स्लम में। लाइक आई से ऑलवेज इन द क्लासरूम, इफ आवर पेरेंट्स हैड द एबिलिटी दे वुड कैपेसिटी दे वुड हैव सेंट अस टू द बेस्ट इंस्टीट्यूशन। ओके, सो द टॉल गर्ल विद द वेट डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉय। तो एक आपने एग्जाम्पल देख लिया किसका, मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ठीक है, इन सब का आपने एग्जाम्पल देख लिया। कौन है वो, टॉल गर्ल है जिसका सर झुका हुआ है किसी मेंटल प्रेशर की वजह से, किसी बर्डन की वजह से, कोई दिमागी उसको बोझ है उसके ऊपर जिसकी वजह से वो सर झुका के बैठी है। जैसे होता है ना भाई, आप बहुत खुश हैं तो आप सर उठा के चलेंगे, और आप बहुत यू आर दुखी, ओके, यू आर उदास, यू आर नॉट फीलिंग वेल, पुअर मार्क्स आ गए आपके क्लास टेस्ट में, तो आपका सर झुक जाएगा खुद ही, किसी ने कुछ रख थोड़ी दिया आपके सर पे, आप प्रेशर में। इज इट क्लियर? फर्स्ट एग्जाम्पल स्टैंजा का, इस स्टैंजा को समझ लो, सबसे आसान स्टैंजा है पोएम का ये, बाकी स्टैंजा थोड़े से टफ है, और पोएम कुल मिला के है ही टफ, तो मैं जितना इजी हो सकेगा करूंगा आपके लिए। द टॉल गर्ल विद वेट डाउन हेड समझ गए, आप आगे चलें। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड साइज, लो छोटा सा सेंटेंस आ गया। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड साइज बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सीम मतलब क्या होता है, यू सीम टू बी टायर्ड, थके हुए दिख रहे हैं आप, यू सीम टू बी टायर्ड, यू सीम टू बी हैप्पी। सीम मतलब दिखना, लगना। पेपर सीमिंग बॉय, अब ये एक बच्चा है, ठीक है, पेपर सीमिंग किसके जैसा लग रहा है, कागज के जैसा लग रहा है। पेपर, पेपर क्या होता है, थिन होता है, मतलब बच्चा कैसा है, थिन है, सीधी सी बात। पोएट यूं भी कह सकता था थिन बॉय, लेकिन भाई पोएट है वो तो लिख रहा है ना, पोएट्री लिख रहा है, तो ऐसी थोड़ी, हिंदी की कविता भी लिखते हैं तो हम अच्छे वर्ड्स लाते हैं उसके लिए, ऐसे नहीं लिख देते कॉमन वर्ड जो कि हमारी स्ट्रीट टॉक में चलते हैं। ओके, सो पेपर सीमिंग बॉय विद रैट साइज, तो देयर इज अनदर बच्चा इन द क्लास एंड दैट बच्चा इज व्हाट, ही इज वेरी थिन, गॉट इट। पेपर सीमिंग बॉय विद रैट साइज, अब ये चूहे की आंख कैसे लग गई उसके, ये समझ लो। देखो फिगरेटिव मीनिंग है, लिटरल मीनिंग नहीं है कि वो बेचारा पैदा ही अंधा हुआ था तो साइंटिस्ट ने कोई ऐसी निकाली ट्रांसप्लांट करके उन्होंने कहा लो चूहे की आंख लगा दो इसके, ये भी देख लेगा दुनिया अपनी आंखों से, ऐसा कुछ नहीं है। विद रैट साइज, व्हाट इज दिस रैट साइज? देखो रैट तो ऑल ऑफ यू हैव सीन रैट। अब रैट इज अ काइंड ऑफ अ क्रीचर ना which is always hungry, you know rat। रैट के बारे में बताता हूँ आपको। और देखो रैट के आगे के जो दो दांत होते हैं ना, दे आर ऑलवेज ग्रोइंग, बढ़ते रहते हैं। वो साइंटिस्ट ने पता लगाया, दे हैव फाउंड दैट इफ दे डोंट बाइट एट थिंग्स, और वो काटे नहीं चीजों को, कुतरते हैं चूहे, तो उनके आगे वाले दांत लंबे होते जाएंगे, तो उनकी एक मजबूरी है बेचारों की कुतरना चीजों को। तो रैट्स को क्या माना गया, भैया ये बहुत हंगरी हैं, भूखे रहते हैं हमेशा, तभी कुतरते रहते हैं, कोई भी चीज मिल जाए। आपके घर के गैस का पाइप कुतर देंगे, तार कुतर देंगे, आपकी किताबें कुतर देंगे, फ्लेमिंगो कुतर देंगे, आप बहुत खुश हो जाओगे, लाइक दैट। ओके, सो the rats are always biting at things, they are considered hungry creatures। तो एक तो हंगर हो गया, एक हंगर है उनकी क्वालिटी, दूसरा क्या है, फियर। चूहा देखा ऐसे आप आए डंडा उसने कहा आओ लड़े, सामना कर रहा है चूहा आपका, है ना, किसी को कहते हैं डरपोक है तो उसको कंपेयर भी चूहे से करते हैं। ओके, सो हंगर एंड फियर, ये समझो, ये तो समझाने के लिए था, जोक्स अपार्ट, टू थिंग्स आर देयर, हंगर एंड फियर। सो इन द आईज ऑफ दिस चाइल्ड, द थिन बॉय जिसको कहा गया है सीमिंग लाइक पेपर, अरे स्कूटर वाले भी परेशान करेंगे, व्हाट इज दैट, हाँ, विद रेड साइज। सो इन हिज आईज देयर आर टू इमोशंस, हंगर एंड फियर। प्रोबेबली ही इज वेरी अफ्रेड, ही इज स्केयर्ड, डरा हुआ है, उसकी आंखों में डर दिख रहा है, और क्या भूख दिख रही है। क्या दिखाता है ये दिखाता है पुअर बैकग्राउंड से है, खाने को नहीं मिल रहा, पेट नहीं भरा। ओके, सो लेसन पेपर सीमिंग बॉय विद रेड साइज, आई होप इट्स क्लियर। फुल स्टॉप, आगे आ जाएं अब। तो ये दो बच्चे हो गए, टॉल गर्ल और पेपर सीमिंग बॉय। अब आ जाओ तीसरे पे। द स्टंटेड अनलकी ईयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स gnarled disease his lesson from his desk। अब देखो ये एक पूरा सेंटेंस लिख दिया ऑथर ने और तुम इसे पढ़ोगे, सॉरी पोएट ने, एंड यू विल गेट कंफ्यूज्ड व्हाई इट्स नॉट रिटन स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट फ्लुएंसी में नहीं है, बिकॉज इट इज पोएट्री। तो लेट मी टेल यू नाउ, सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। स्टंटेड, व्हाट इज स्टंटेड? स्टंटेड होता है वन हु इज शॉर्ट इन हाइट, गिट्ठा गिट्ठा रह गया, छोटा रह गया, पूरी हाइट नहीं निकली इसकी।